Good morning, friends. Welcome to my 22nd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. Okay, and particularly we are discussing regarding positional average. Positional average covers median, quartile, decile, percentile, and more. And out of this, we have already discussed regarding median, quartile, decile, and percentile. So we are discussing regarding percentile. I have told that percentile is a average which divides the entire series into 100 equal parts. So there are 99 percentiles. What are the 99 percentile? One is P1, P2, P3, P4, P5, P6 up to this P99. P1 is the lower percentile and P99 is the upper percentile. Both P1 and P99 are known as extreme percentiles. Next, we have discussed P50 is the middle percentile. Then we have discussed how to compute percentile in case of individual series. Next, we have discussed computation of percentile in case of discrete series. Today, we will focus our discussion for calculation of percentile in case of continuous series. So we will discuss how percentile will be calculated in case of continuous series. Okay, before discussing my lecture on computation of percentile on continuous series, let me first share my screen with you, then we'll discuss details regarding it. Okay, 1 minute please. Okay, friends. So we are discussing regarding percentile. So we will discuss how to compute percentile in case of continuous series. Now please see, in case of continuous series, we cannot find out percentile directly. What is a continuous series? A continuous series is a series where we have x values and f values, but x values are given in class interval form, like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, like this. And we have to calculate the percentile in case of continuous series. Here we have to follow two steps. First, step 1. In step 1, we will calculate or compute the percentile class. How we will calculate the percentile class? We will apply some formula and then we will search it in CF and corresponding X. We have already discussed. First we will discuss it. We will calculate percentile class. Once percentile class is found out, then what we will do? We will calculate step 2, percentile value. We will compute the percentile value. How percentile value will be calculated? By applying formula. So we have to follow two steps. First we will calculate percentile class. Next we will calculate percentile value. Okay, in this fashion we will calculate the percentile in case of continuous series. So first we will discuss how to calculate percentile class, then we will discuss how to calculate percentile value. बेटा कितना परसेंटाइल है? 99 परसेंटाइल है. P1, P2, P3, P4 up to P99. So P1 class and P1 value, P2 class, P2 value, P3 class, P3 value. Like this, 99 formulas will be there. But I cannot teach you 99 formulas, and you also cannot remember 99 formulas. Only you have to understand how a formula is made.
Then once you know how the formula is made, you can apply your common sense and frame the formula for all percentiles. Okay, so first we will discuss how to compute P1. So heading कीजिए computation of P1. What is P1? परसेंटाइल 1. परसेंटाइल 1 कैसे कंप्यूट होगा पहले उसको देखेंगे. फर्स्ट हमको निकालना है P1 क्लास. First we have to find out P1 class. What is P1 class? P1 class कैसे निकलेगा? P1 class is equal to n by 100th item. बेटा P1 क्लास समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला क्या है? n by 100th आइटम. इसको कैसे ढूंढेंगे? इसको फास्ट फाइंड इट इन CF and then in corresponding x. पहले CF में ढूंढेंगे फिर कॉरेस्पॉन्डिंग x में ढूंढेंगे. तो पहले क्या निकालेंगे? P1 क्लास निकालेंगे. फिर P1 क्लास मिल गया, उसको रेफर करके हमको P1 वैल्यू निकालना है. How P1 value will be calculated? P1 value will be calculated with the help of a formula. What is the formula? Formula याद रखो, L plus n by 100 minus CF by F into I. बेटा फॉर्मूला याद रहेगा. फॉर्मूला क्या है? L plus n by 100. This is the formula. L plus n by 100 minus CF by F into I. तो अभी पढ़ेंगे what are the variables. L क्या है पढ़ेंगे. What is L लिखेंगे. फिर बाकी और एक एक आइटम करके लिखेंगे. What is L लिखो. L means what is L? L का मतलब क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास. परसेंटाइल क्लास का लोअर लिमिट है L. एंड व्हाट इज N? N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिसको भी हम बोलेंगे समेशन F. N है बेटा. L गया, N गया, फिर आ गया CF और F. ये इंपोर्टेंट है. CF क्या है? CF हमेशा इंपोर्टेंट होता है. CF क्या होता है? हमेशा ऊपर वाला क्लास का CF होता है. तो CF लिखेंगे. CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ above class. What is above class? Above परसेंटाइल क्लास. जो परसेंटाइल क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड F क्या है? F है फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास. जो परसेंटाइल क्लास निकला है उसका फ्रीक्वेंसी है F. एंड व्हाट इज I? I तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. I का मतलब क्या है? I का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ परसेंटाइल क्लास. परसेंटाइल क्लास का क्लास इंटरवल. बेटा ये सारा आइटम लिख लो. पहले लिख लो, फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे. और कैसे हम निकाल सकते हैं क्या? कौन सा वैल्यूज और डिफरेंट वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं. Q1 का फॉर्मूला हो गया. फिर बाकी 4-5 का फॉर्मूला मैं बताऊंगा. पहले आप Q1 का फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी हम 4-5 का फॉर्मूला अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे. बेटा Q1 गया, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? Q1 का फास्ट निकालेंगे n by 100th आइटम, फिर फॉर्मूला डालेंगे. फॉर्मूला क्या है? L plus n by 100 minus CF by F into I. So this is computation of P1 values.
एक बार P1 निकल गया, उसी हिसाब से P25 निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं, P10 निकाल सकते हैं, P30 निकाल सकते हैं। मैं 2-3 और बनाऊंगा, बाकी आप अपने आप समझ जाइए। ठीक है, तो P1 गया, कंप्यूटेशन ऑफ P1 गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे हाउ टू कंप्यूट P computation of सपोज P30। P30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे, P30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ P30। बेटा P30 का पहले P30 क्लास निकालेंगे। व्हाट इज P30 क्लास? दैट विल बी 30n बाई 100 आइटम। फिर P30 वैल्यू निकालेंगे। P30 वैल्यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला होगा L प्लस क्या होगा 30n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा समझ में आ रहा है क्या? जैसे कंप्यूटेशन ऑफ P30 हुआ, नाउ कैन वी कैलकुलेट P40 और P50 कंप्यूटेशन ऑफ P50। P50 निकालते हैं, देखते हैं P50 कैसे निकलता है। बेटा P50 कैसे निकलेगा? पहले क्या करेंगे, P50 क्लास निकालेंगे। निकालो P50 क्लास। फॉर्मूला क्या होगा? P30 30n बाई 100 था, P50 हो जाएगा 50n बाई 100 आइटम। एक बार मिल गया, फिर P50 का वैल्यू निकालेंगे। P50 का वैल्यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला डालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? L प्लस पढ़ो 50n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा P50 समझ में आ रहा है क्या? P30 कैसे निकला समझ गए, P50 कैसे निकला समझ गए। अगर हमको P75 निकालना है तो अभी देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ P75। कंप्यूटेशन ऑफ P75। P75 कैसे निकालते हैं देखते हैं। P75 कैसे निकलेगा? P75 का पहले फॉर्मूला डालेंगे, पहले P75 क्लास निकालेंगे। निकालो P75 क्लास। क्या होगा P75 क्लास का? फॉर्मूला होगा P30 क्लास का हुआ था 30n बाई 100, 50 क्लास का होता 50n बाई 100, 75 क्लास का होगा 75n बाई 100 आइटम। फिर P75 का वैल्यू निकालेंगे। P75 का वैल्यू होगा, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, L प्लस 75n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा अगर ये समझ गया, अभी लास्ट बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ P99। P99 कैसे निकलेगा? फर्स्ट क्या करेंगे, P99 क्लास निकालेंगे, फिर P99 का वैल्यू निकालेंगे। निकालो फर्स्ट P99 क्लास कैसे होगा? फॉर्मूला डालेंगे 99n बाई 100 आइटम और P99 का वैल्यू निकालेंगे। P99 का वैल्यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला क्या है? L प्लस 99n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई।
बेटा इस हिसाब से जिसका भी फॉर्मूला है, हम चारों फॉर्मूला अभी पढ़े, चारों का फॉर्मूला कैसे निकल सकता है, 4 और एक P1 पढ़ाया था 5। तुमको क्या है 99 में से कोई भी फिगर पूछ सकता है, P35 उसी हिसाब से होगा, P45 उसी हिसाब से होगा, तुमको कुछ भी पूछ सकता है। तुम इसी तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करना और सारा का सारा वैल्यू आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसी को बेस करके अभी हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे जहां पर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखेंगे कैसे वैल्यूज निकलता है, कौन सा वैल्यू परसेंटाइल निकलता है। ठीक है, तो देखेंगे। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 1। लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट P25 calculate P25, P75 and P90 from the following। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें से 3 चीज निकालने को बोलता है। क्या क्या? P25, P75, P90। क्या क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे। और पहले वैल्यूज दिया हुआ है, एक्स वैल्यू दिया हुआ है और एफ वैल्यू दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, फिर दिया हुआ है 60 to 70, लास्ट 70 to 80। तो एक्स वैल्यूज दे दिया है। फिर एफ वैल्यू दिया हुआ है, 0 to 10 का एफ लिखिए 8, और 10 से 20 का एफ लिखिए 12, फिर 20 से 30 का लिखिए 13, 30 से 40 का लिखिए 7, 40 से 50 का लिखिए 16, 50 से 60 का लिखिए 14, 60 से 70 का लिखिए 12, 70 से 80 का लिखिए 18। टोटल हुआ कितना? टोटल हुआ n इजिकल टू 100। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है, n है 100, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ये तीनों निकालना है, P25, P75, P90 निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। निकालिए CF। 0 to 10 8, तो फास्ट होगा CF 8। सेकेंड वाला होगा 8 + 12 20, थर्ड वाला होगा 20 + 13 33, नेक्स्ट वाला होगा 33 + 7 40, नेक्स्ट होगा 40 + 16 56, नेक्स्ट होगा 56 + 14 80, नेक्स्ट होगा 80 + 12 12, 80 प्लस नहीं 56 + 14, यहाँ पर गलती हो रहा है, 70 हो जाएगा। 56 + 14 that is equal to 70। okay, 70 + 12 that is equal to 82, 82 + 18 that is equal to 100। हमेशा याद रखो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका लास्ट में जो आएगा n वही वैल्यू आएगा। तो एक बार ये निकल गया, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी फॉर्मूला डालकर सारा वैल्यू निकालना है।
कौन कौन सा वैल्यू निकालते हैं? पहले P25 निकालेंगे, बाद में P75 निकालेंगे, नेक्स्ट में P90 निकालेंगे। ठीक है, तो फास्ट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ P25। पहले किसका वैल्यू निकालते हैं? P25 का वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या करेंगे? P25 क्लास निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। तो लिखोगे P25 क्लास। बेटा कैसे P25 क्लास आएगा? P25 क्लास आएगा, हमको पता है दैट इज इक्वल टू 25n बाई 100 आइटम, दैट इज इक्वल टू 25। n कितना है? n है 100 बाई 100 आइटम, दैट इज इक्वल टू कितना? 100 कैंसल हो गया, दैट इज इक्वल टू 25th आइटम। 25 नंबर वाला आइटम क्या है? P25 क्लास है। 25 नंबर कहां पर है ढूंढेंगे? 8 में 25 है क्या? नहीं। 20 में 25 है क्या? नहीं। 33 में 25 है क्या? 33 के अंदर 25 है। तो 33 के सामने जो लिखा हुआ है, 33 के सामने कौन सा क्लास है? 20 to 30, दिस इज आवर P25 क्लास। तो आ गया आपका P25 क्लास इज इक्वल टू कितना? 20 to 30। अगर P25 क्लास ये है, P25 का वैल्यू निकालेंगे, P25 का फॉर्मूला डालेंगे। P25 का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P25 इज इक्वल टू L प्लस 25n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई, दैट इज इक्वल टू एल। एल का मतलब लोअर लिमिट। बेटा 20 से 30 का लोअर लिमिट कितना है? 20 से 30 के बीच में लोअर लिमिट सर 20 है, तो ये हो गया 20 प्लस 25n। 25n बाई 100, 25n बाई 100 तो यहाँ पर निकाले ही, वैल्यू आता है 25 माइनस CF। CF मतलब जो क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का, उसका ऊपर वाला क्लास ये है, इसका CF। तो P25 क्लास 20 to 30 है, इसका ऊपर वाला क्लास ये है, उसका CF। उसका CF कितना है बेटा? उसका CF देखो कितना आता है? 20। सो ये हो गया 20। तो 25 माइनस 20 बाई F। F कौन सा है? उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी। उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 13 बाई 13 इंटू आई। आई कितना है बेटा? आई है इन दोनों के बीच में गैप, 20 और 30 का गैप, दैट इज इक्वल टू 10। दैट इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है? 20 प्लस कितना होगा? 25 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 8। नहीं, 25 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 बाई 13। बेटा कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 50 बाई 13, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 50 बाई 13 कितना होता है? 50 बाई 13 आपका आ जाएगा 3.85। टोटल मिला दो कितना होता है? 20 प्लस 3 23.85। ये वैल्यू आ जाएगा किसका? P25 का। बेटा P25 का वैल्यू समझ में आ रहा है क्या? पहले P25 क्लास निकाले, फिर P25 क्लास से P25 का वैल्यू निकाले। अभी हमको और दोनों करना है। P25 चला गया, अभी करेंगे P75। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ P75। P75 निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं। ओके, P75 निकालेंगे। बेटा P75 कैसे निकल सकता है? देखो P75 निकालने के लिए पहले P75 क्लास निकालना पड़ेगा। निकालो P75 क्लास।
फास्ट निकालो P75 क्लास। फॉर्मूला क्या होगा P75 क्लास का? P75 क्लास का फॉर्मूला होगा 75n by 100th आइटम, दैट इज इक्वल टू 75n कितना होगा 75 इंटू n मीन्स 100 बाई 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 75th आइटम। 75 नंबर वाला आइटम P75 क्लास में है। तो 75 नंबर वाला आइटम कहां पर है? 8 में नहीं, 20 में नहीं, 33 में नहीं, 40 में नहीं, 56 में नहीं, 70 में नहीं, 82 में 75 है। तो आ गया आपका ये वाला क्लास 62 70। दिस इज अवर P, कौन सा क्लास? P75। सो P75 का क्लास पता चल गया। Therefore P75 क्लास इज इक्वल टू, बेटा P75 का क्लास कितना है 62 70। अभी P75 का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, P75 का वैल्यू निकल जाएगा। P75 वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला क्या है L प्लस 75n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू I। बेटा L कितना है? L है लोअर लिमिट 60 प्लस 75n बाई 100, 75n बाई 100 ऊपर में यहां पर निकाले हैं, कितना आता है वैल्यू 75 माइनस CF। CF मतलब जो क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास, उसका ऊपर वाला क्लास का CF कितना है 70, तो इसका वैल्यू आ गया 70 डिवाइड बाई F। F उसी क्लास का कितना आता है 12 डिवाइड बाई 12 इंटू I। I कितना है? I है इन दोनों के बीच में गैप, 60 और 70 के बीच में गैप 10। बेटा इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूं, हाँ अभी मेरा वैल्यू हम निकाल देंगे, P75 निकल जाएगा। तो P75 का वैल्यू कितना आता है देखो, तो देयरफॉर P75 वैल्यू इज इक्वल टू कितना आता है 60 प्लस, ये कितना हो गया 75 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस कितना आता है, ये हो गया 50 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 4 पॉइंट कितना आएगा 4.17 that is equal to 64.17. This is your value. बेटा गया क्या? ये किसका कैलकुलेशन गया? ये कैलकुलेशन गया कंप्यूटेशन ऑफ P75। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अभी कंप्यूटेशन करेंगे किसका P90 का। तो हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ P90। बेटा P75 का ये कैलकुलेशन गया, अभी P90 का कैलकुलेट करेंगे। बेटा P90 कैसे करेंगे? पहले P90 क्लास निकालेंगे, फिर P90 का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो फर्स्ट P90 क्लास। फॉर्मूला क्या होगा P90 का? P75 का 75n था, P90 का हो गया 90n बाई 100 आइटम, दैट इज इक्वल टू 90 इंटू n कितना? बेटा n कितना है? n है 100 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 19th आइटम। 90 कहां पर है? 56 में तो 90 नहीं, 70 में तो 90 नहीं, 82 में तो 90 नहीं, 100 के अंदर 90 है। अगर 100 के अंदर 90 है तो कौन सा क्लास है?
देखो क्लास है 70 to 80, तो दिस इज P90 क्लास। तो लिखेंगे देयरफॉर P90 क्लास इज इक्वल टू 70 to 80। 70 से 80 वाला P90 का क्लास आया। अभी हम ढूंढेंगे व्हाट इज द P90 वैल्यू। तो इसमें से P90 का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे देयरफॉर P90 इज इक्वल टू, फॉर्मूला डाले। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है L प्लस 90N बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई। दैट इज इक्वल टू, बेटा एल कितना है? एल है 70 to 80, ये वैल्यू है। तो 70 प्लस 90N बाई 100, 90N बाई 100 यहां पर निकाले हैं, कितना आता है 90, माइनस CF। माइनस CF, अभी CF मतलब जो क्लास है, जो क्लास है तो लास्ट वाला क्लास है, उसका ऊपर वाला क्लास का, उसका ऊपर वाला क्लास का कितना है? देखो यहाँ पर 82 माइनस 82 डिवाइड बाई F। F का मतलब उसी क्लास का, उसी क्लास का कितना है 18 इंटू आई। आई क्या है? इन दोनों के बीच में गैप, किसके किस में? 70 और 80 के बीच में गैप, 70 80 के बीच में गैप है 10। तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा? 70 प्लस कितना आया 90 माइनस 82, 90 माइनस 82 हो गया 8 बाई 18 इंटू 10। that is equal to 70 plus 80 by 18, that is equal to 70 plus 80 by 18 का वैल्यू आता है आपका 4.44। तो इसका टोटल वैल्यू 70 प्लस 4.44, दैट इज इक्वल टू 74.44। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ योर P90। तो हम सारा वैल्यू निकाल दिए। पहला वैल्यू निकला ये 23.85, दूसरा वैल्यू निकला 64.17, तीसरा वैल्यू निकला 74.77। तीनों का वैल्यू निकाल दिए, जो क्वेश्चन में पूछा था वो सारा वैल्यू निकाल दिए। इस हिसाब से हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटाइल का। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो देखेंगे। लिखो स्पेशल पॉइंट लिखो स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल। कौन सा सीरीज में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कुछ स्पेशल पॉइंट जो हमको रिमेंबर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 मैं बताया था आपको, ये जो परसेंटाइल है ये पोजिशनल एवरेज है। अगर कोई भी पोजिशनल एवरेज है, अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है, पहले हमको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ डाटा आर नॉट अरेंज्ड, we have to first arrange the data in ascending order।
or descending order. Beta, what is ascending or descending order? Increasing or decreasing order. Then we calculate percentile. ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इसका मतलब बीच बीच में गैप है. अगर गैप वाला सीरीज दिया हुआ है, इसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? गैप बाय 2 फॉर्मूला डालकर दोनों साइड से, पहले साइड से लेस करेंगे, लेफ्ट साइड से लेस करेंगे, राइट साइड पर ऐड करेंगे. तो लिखेंगे इफ इंक्लूसिव सीरीज is given, we have to convert it into exclusive one by applying which formula? Gap by 2 formula, and then calculate percentile. बेटा समझ में आ रहा है क्या? थर्ड पॉइंट बोलता है, अगर क्वेश्चन में इफ इन द क्वेश्चन इनइक्वल क्लास इंटरवल इज गिवन. इनइक्वल मतलब 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 30, नेक्स्ट 30 to 80, नेक्स्ट 80 to 90, नेक्स्ट 90 to 100. इसका मतलब गैप क्या है? कम है, इनइक्वल है. तो हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. ओपन एंडेड सीरीज दिया हुआ है, उसमें भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. तो लिखेंगे इफ अनइक्वल class interval or open-ended series of data is given, no special treatment is required. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, फोर्थ पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में क्या दे देता है? अगर क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देता है. व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इसका मतलब लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज देता है. तो पहले हमको एक्स और एफ कॉमन सेंस लगाकर निकालना है, फिर परसेंटाइल निकालना है. तो लिखेंगे इफ cumulative frequency distribution. What is cumulative frequency distribution? ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज. सारा आइटम लेस देन या सारा आइटम मोर देन, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज गिवन. वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट x and f by applying common sense then find out percentile. बेटा ये चारों पॉइंट याद रहेगा. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बोलता है डाटा अगर अरेंज नहीं हुआ है, पहले हम उसको अरेंज करेंगे.
फिर क्वार्टाइल निकालेंगे, सेकेंड फिर परसेंटाइल निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट बोलता है अगर डाटा इंक्लूसिव सीरीज में है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव करेंगे। कैसे करेंगे? गैप बाय 2 फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोलता है अगर ऑन इक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है या ओपन एंडेड सीरीज दिया हुआ है, उसे जिस तरह से हम पहले एवरेज निकालते हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑन इक्वल इंटरवल का जरूरत है मोड निकालने में। बाकी हर जगह पर मीन हो, मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, ऑन इक्वल का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स और एफ निकालेंगे, फिर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटाइल निकाल सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े? तो आज के क्लास में हम परसेंटाइल निकालना पड़े। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, परसेंटाइल कैसे निकलता है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल हम पढ़े। परसेंटाइल का मतलब क्या है? परसेंटाइल एक ऐसा चीज है जो पूरा सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो परसेंटाइल कितना होता है? परसेंटाइल 99 होता है। कौन कौन सा 99? P1 से P99 तक। तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, आज हम उसके बारे में बात किए। तो बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी फर्स्ट रिपीट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, kindly subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon so that you will get all the latest videos as and when I upload it in YouTube. And if you have any doubt, you are always free to contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, biswomishra, biswamishra @gmail.com. Thank you. Thank you all for watching my videos and have a nice day. Thank you. Thank you all.